Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video lecture for class 12 students. In this video lecture, I will begin to explain the question number 11 on word because all about matter of question number 11 to 12 get explained in previous video lecture. This is quick revision. It means the full revision. Here unfortunately I have mentioned the quick revision. This is full revision of sample paper that you have recently appeared as examination. This is all about matter of class 12 subject biology. In previous video lecture you have learned the revision of question number 1 to 12, 1 to 10. In that video lecture if you have any kinds of problem then you can write your comments in comment box. I will surely further explain that questions in next video lecture. So you need to write your problems in comment box rather than asking personally through the WhatsApp or through the phone calls, because if you have any problems then that problems get resolved through the YouTube links. So without delay timing, let's back over the question number 11. Actually this question number and this video section is very important for you because in this video section I am here going to attempt the assertion and reason type question that is very new for 2021 students, because this is a very logical question and that may also create a problems in examination. So in this video lecture I will also give you the trick to solve the different kinds of question that may ask also in the upcoming examination. I have here different other assertion region type question. A series of assertion region of question will revise through the video lecture, but this is the beginning of assertion and region questions that may help you to overcome the problems and fears along the assertion and region. So without delay timing, let's back over the question number 11 and solve them properly. Question number 1 to 10 is over in previous video lecture. Now let's back over the question number 11. The direction for question number 11 to 14 is given. Actually अगर एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्शन दिया गया तो डायरेक्शन जरूर पढ़ लिया करिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्शन नहीं पढ़ते, डायरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं। हालांकि मैं अभी आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिसके थ्रू आपके पास अगर टाइम नहीं है असर्शन रीजन, एक्चुअल में एग्जामिनेशन में आप असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन सबसे लास्ट में करें तो बेटर होगा। रीजन ये है कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में आपको लॉजिकली चीज़ों को समझना पड़ता है तब जाके आंसर देना पड़ता है। आंसर तो वन वर्ड में ही देना पड़ता है, सिर्फ ए या बी करके ही देना पड़ता है, ठीक है। बट आप उसके लिए अगर स्टडी नहीं किए हैं या असर्शन रीजन को अच्छे से नहीं पढ़े हैं या आपके पास सिलेबस का नॉलेज नहीं है तो आप इसको गलत कर देंगे, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप ऐसे क्वेश्चन जिसको आप अच्छी तरह पकड़ पाएँ, जिसको आप अच्छी तरह लिख के नंबर ले सके, उसको पहले अटेम्प्ट करिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप बिना डायरेक्शन पढ़े, बिना डायरेक्शन पढ़े असर्शन रीजन को अटेम्प्ट मत करें, ठीक है। चलो असर्शन रीजन के लिए जो हमारा डायरेक्शन उसको देख लेते हैं एक बार जल्दी। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजन्स, गिव द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल डायरेक्शन जो असर्शन रीजन के लिए होता आया है वही दिया हुआ है, इसमें कोई नया नहीं है कि आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। जो असर्शन है वो ए करके है और रीजन जो है वो आर करके है, ठीक है। असर्शन क्या होता है, एक कॉमन सा सेंटेंस होता है, रीजन उस सेंटेंस से रिलेटेड उसका फ्रेश लाइन होता है जो उसी का एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करने क्या है, आपको आंसर जो है 11 से लेकर के 14 के बीच में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको ABCD में ही देना है। जैसे आपको आंसर क्या लिखना, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं सर आंसर क्या लिखें, तो आपको अगर आंसर 11 का देना है तो आंसर 11, ठीक है, ए करके दे देना है, ठीक है। अब ए कब देना है या आंसर बी कब देना है या आंसर सी कब देना है या आंसर डी कब देना है, इस चीज़ को आपको समझना है, इस चीज़ को आपको जानना है, ठीक है। अब आंसर ए कब देना है, देखो जनरली जो आपका ये आंसर है, आंसर का क्राइटेरिया बनाया गया, यही क्राइटेरिया सब में, ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया होता है, ठीक है। बट ये 100% आप श्योर मत मान लीजिए, आपके पास अगर टाइम होगा तो ये वाला बस यही वाली चीज़ें आपको पढ़ना है असर्शन रीजन के लिए, क्योंकि ए कब देना है,
ठीक है, बी कब लिखना है, सी कब लिखना है, डी कब लिखना है। ठीक है, फिलहाल आप अपने से 100% इस चीज़ को श्योर मत मानिए कि स्टेटमेंट ये आंसर आपको बिल्कुल यही देना है, ABCD ही देना है और ABCD का क्राइटेरिया बिल्कुल हर जगह यही होगा, बट 99% केस में सेम क्राइटेरिया ही दिया रहता है एग्जाम में। ठीक है, ए कब लिखना रहता है, बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू, यानी कि आपको जो स्टेटमेंट ए करके दिया है या स्टेटमेंट आर करके दिया, दोनों अपनी अपनी जगह पे बायोलॉजी के एंगल से, आपके साइड बुक के एंगल से, आपके NCERT की जो लाइन बाय लाइन आप पढ़ के आए हैं, जो बैठे हुए एग्जामिनेशन में, उसके एंगल से दोनों स्टेटमेंट, दोनों लाइन बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी कि जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अभी मैं आपको ट्रिक दे दूंगा जिससे आप एकदम से कब ए होगा तो कब बी होगा, कब सी होगा, ठीक है, इसको आप आसानी से पकड़ लेंगे। फिलहाल अभी इतना समझें कि आपके पास दो स्टेटमेंट रहेगा, एक ए करके एक आर करके। ठीक है, ए स्टेटमेंट आर से कोरिलेट है, पहले तो यही चेक करना रहता है। ठीक है, अगर ए स्टेटमेंट आर से कोरिलेट है तो नो डाउट ये आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ठीक है, अगर ए स्टेटमेंट, पहले तो ये चेक करिए कि दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है तो ये ए ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब कोई ऐसा लाइन जो स्टेटमेंट ए में आया है और आर में भी आया है, तो इससे हम ये पकड़ लेते हैं कि ए जो है आर जो है, आर वाली लाइन वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जैसे मान लो आपके पास स्टेटमेंट होगा, उसका एक रीजन होगा। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, पहले तो स्टेटमेंट चेक करते हैं कि कभी कभी होता है कि स्टेटमेंट ही गड़बड़ होता है आर का, ठीक है, या ए का। दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर ए हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आंसर ए सही है, आंसर ए ही करके चलाओ, नहीं, आंसर ए सही हो सकता है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर ए हो सकता है। अब ऐसी कोई वर्ड जो ए में भी अवेलेबल है, आर में भी अवेलेबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ये नहीं कहेंगे आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं, आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है जब ए में कोई ऐसा, जो ए में कोई ऐसा वर्ड हो जो आर में भी आया हुआ हो। ठीक है, अब आते हैं, अब आपको यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप पकड़ लेंगे कि ए जो है आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, यही थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। तो दो चीजें पहले आपको फाइंड आउट करनी है कि जो स्टेटमेंट ए के लिए वो सही है या जो स्टेटमेंट आर के लिए वो सही है, तभी हम ए पे जाएंगे, अदरवाइज बी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या सोचेंगे, कोई ऐसा टर्म जो ए में आया हुआ है और बी में भी आया हुआ है, ठीक है, ये दोनों में अवेलेबल है, तो ये ए आंसर हो सकता है। अमूमन अगर आपको स्टेटमेंट ए भी सही, आर भी सही है, ठीक है, आर भी सही है स्टेटमेंट और ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और एक ऐसा वर्ड जो आर में आया हुआ है, ए में आया हुआ है, ठीक है, और आर में भी आ गया है, तो ये ए आंसर ही होता है। अनडाउटली आप बिना किसी देर किए आप ए ही आंसर पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, ए कब लिखना है, जब दोनों स्टेटमेंट सही हो, यानी असर्शन भी सही हो और रीजन भी सही हो, और साथ में जो रीजन है वो ए का, यानी कि असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तब ए लिखना रहता है। बी कब लिखना रहता है, जब दोनों स्टेटमेंट, बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी कि बी आपको किस केस में लिखना है कि जब दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, वो अपनी जगह पे बात सही कह रहा है या अपनी जगह पे बात सही कह रहा है। जैसे आपको मैं कहूँ कि मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ऐसे लिखना है, सपोज दैट रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला स्टेटमेंट ऐसे कोई दे दे, रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बी स्टेटमेंट में क्या दे दे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका सिट इन द व्हाइट हाउस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी सही है और ये भी सही है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका सिट इन द व्हाइट हाउस, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब ये कहो कि बी का, ये बी जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये नहीं है,
इसमें ए में इंडिया की बात कर रहा है और बी में किसकी बात कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन कब सेलेक्ट करेंगे, जब असर्शन सही हो और रीजन भी सही हो, असर्शन वाला सेंटेंस भी सही हो, ए वाला सेंटेंस भी सही हो और बी वाला सेंटेंस भी सही हो, दोनों सेंटेंस सही हो, लेकिन बी का ए से कोई लेना देना नहीं हो। ठीक है, तब ये बी सेलेक्ट करेंगे। सी कब सेलेक्ट करेंगे, जब असर्शन वाला सेंटेंस सही है लेकिन रीजन वाला सेंटेंस गलत है। ठीक है, तब सोचेंगे ही नहीं, तुरंत सी दे देंगे। और डी कब दे देंगे, जब असर्शन वाला भी सेंटेंस गलत हो और रीजन वाला सेंटेंस गलत, दोनों सेंटेंस पे ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं करेंगे। चलो अब क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। अब जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। यही एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है और बिना दिमाग के आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। चलो आते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, इसमें पहले हम पढ़ते हैं असर्शन, उसके बाद पढ़ेंगे रीजन। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आप जो है असर्शन को खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए और रीजन को पहले पढ़ लीजिए। ये मत जानने की कोशिश करिए कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ठीक है, पहले तो आपको यही जानना है कि जो रीजन है, ठीक है, वो स्टेटमेंट रीजन वाला सही है कि नहीं है और असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ऑप्शन बी या सी में से कोई, ऑप्शन सी या डी में से कोई ऑप्शन कहीं सही ना हो जाए। ठीक है, मैंने ऊपर के स्टेटमेंट में मैंने बताया था, ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था कि ए कब सही होगा, बी कब सही होगा या सी या डी कब सही होगा। ठीक है, अभी आते हैं, समझा देते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, लिसन, पॉलेंस आर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया आफ्टर मियोटिक डिवीजन। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का प्लूरल होता है। तो ये तो क्लियर है कि पॉलन जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में ही बनते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में ही बनते हैं। एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम में चार चार जो है क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम से, एक एक जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार चार पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजियम में ही बनते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, नो डाउट, ट्रू। सेकंड आते हैं, दे आर डिस्चार्ज एट 4 सेल स्टेज रिप्रेजेंटिंग मेल गैमेटोफाइट। देखो मेल गैमेटोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आइदर 3 सेल स्टेज और 2 सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 3 सेल स्टेज होता है और 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये क्या होता है, 2 सेल स्टेज होता है। दोनों का नाम मैं बता दे रहा हूँ। अगर मेल गैमेट्स में 2 सेल स्टेज है तो एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा क्या होता है, जनरेटिव सेल। लेकिन 60 ये जो 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें 3 सेल स्टेज होता है उसमें 2 जनरेटिव सेल होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होता है। यानी कि मैक्सिमम 3 सेल स्टेज हो सकता है, 4 सेल स्टेज कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आंसर गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। पहला स्टेटमेंट अगर सही है, दूसरा स्टेटमेंट गड़बड़ है, तो ऑप्शन किस में जाते हैं, बी में जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में जाते हैं। ठीक है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो रीजन क्या है, फॉल्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में है, ए में ही है, 11th में ही है। असर्शन क्या दिया हुआ है, ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंट मेगास्पोरेंजियम। कह रहा है कि ओव्यूल जो है एक इंटेगुमेंट वाला मेगास्पोरेंजियम है। सही बात है, ओव्यूल जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होता है और जिसका इंटेगुमेंट, जिसमें क्या होता है कि एक कवर होता है जिसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, उसको मेगास्पोरेंजियम है। अब आते हैं, इट डज नॉट डेहिस्ट एट मैच्योरिटी एंड रिटेन मेगा स्पोर परमानेंटली इनसाइड। अब देखो पहला स्टेटमेंट हमको देखना है कि पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो सही है कि नहीं है, फिर दूसरा स्टेटमेंट देखना है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम में होता है जिसके पास इंटेगुमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो सही है, तो इस पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट इट लगा दिया, तो इसका मतलब ओव्यूल के लिए बोल रहा है। डेहिस एट मैच्योरिटी, यानी कि ओव्यूल जो है मैच्योरिटी के टाइम पे पोलन ग्रेन की तरह से डेहिस नहीं होते हैं और कहाँ रहते हैं, मेगास्पोर में ही। ठीक है, परमानेंटली हमेशा के लिए रहते हैं। तो ये एकदम से सही जो है, एट मैच्योरिटी एंड रिटेन मेगास्पोर परमानेंटली, यानी मेगास्पोर को बना के रखते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो भी सही है,
पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब देखो पहले में कोई ऐसा सेंटेंस दूसरे में आया हुआ है, इट जो वर्ड लग गया है वो कोरिलेट कर दे रहा है ओव्यूल के लिए ही, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है। और कोई ऐसा वर्ड जो आर में आया हुआ है, इसका मतलब रीजन जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये भी आंसर ए ही होगा, 11 का ए ही होगा। देखो और वाले सेक्शन में जब हम जाते हैं, ठीक है, जब आपको इस तरह से असर्शन, एक और ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, जब असर्शन रीजन आपको दिया हुआ हो और करके दिया हुआ हो, ठीक है, और करके दिया हुआ, तो जो पहला असर्शन रीजन का आंसर होगा वही दूसरे का भी आंसर होता है। पहले का अगर ए है तो दूसरे का भी ए ही होगा। यानी पहले में हमने क्यों ए लिखा था, दोनों स्टेटमेंट सही था और जो रीजन था वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। और वाले सेक्शन में आए तो आंख बंद करके आपको पढ़ना ही नहीं है, सीधे आपको ए लिख देना है। यानी ए जब लिखेंगे तो इसमें ये पहले वाले का भी स्टेटमेंट है और पहले वाले का भी आंसर हो जाएगा, दूसरे वाले का भी आंसर हो जाएगा। वो एग्जामिनर समझ जाता है, क्योंकि यहाँ ए ऐसे करके सेकंड पार्ट करके नहीं दिया हुआ है कि ये इसका आंसर बदल जाएगा। ये जो इसका आंसर ए होगा उसका भी आंसर ए ही होगा, ठीक है। यानी दोनों के केस में क्या है, स्टेटमेंट दोनों सही है और जो रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब तो जल्दी जल्दी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 12 पे आ गए। 12 में क्या दिया हुआ है, कैंसर इंसिडेंट इंक्रीज विथ एज। कह रहा है कि कैंसर जो है एज के साथ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो कैंसर जो है एज के साथ तो नहीं बढ़ता है, बट इसकी स्टेबिलिटी ये डिपेंड करती है, बढ़ने की रफ्तार जो है डिपेंड क्या करती है कि जो म्यूटेजीन्स है, आपने पढ़ा होगा म्यूटेजेंस बोलते हैं उसको, उसका स्ट्रेंथ कितना है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गड़बड़ है। ऑन्कोजीन्स आर एपिस्टैटिक टू द जीन्स ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। कह रहा है कि ऑन्कोजीन्स जो है एपिस्टैटिक है, यानी एपिस्टैटिस का मतलब जब एक जीन दूसरे जीन्स के काम को रोक देता है और अपनी ही डोमिनेंसी को फॉलो कराता है। ऑन्कोजीन्स क्या होता है, ऐसा जीन्स जो कैंसर को मोटिवेट करता है, कैंसर सेल्स को बढ़ाता रहता है हमारी बॉडी में। तो ये कब बढ़ाता है, जब ये दूसरे जीन्स को सप्रेस कर देता है। तो पहला स्टेटमेंट गड़बड़ है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, सीधे आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं अब हमारा जो 13 नंबर है, 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, ठीक है। ये चैप्टर 12 का मैटर है। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के बारे में थोड़ा बहुत आपको चैप्टर 10 में बताया गया था, ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, थ्यूरिंजिएंसिस। इस बैक्टीरिया की खास बात ये होती है कि ये बैक्टीरिया एक खास तरह का प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन को कहते हैं क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन इसलिए क्योंकि शुरुआत में क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। और ये बैक्टीरिया को कुछ नहीं करता है, लेकिन ये जैसे ही कोई एनिमल इसको फीड करता है, इस प्रोटीन को कोई एनिमल अगर फीड कर ले तो उसकी डेथ हो जाती है। रीजन क्या है कि ये शुरुआत में क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉक्सिन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जैसे ही ये मैच्योर होता है और किसी होस्ट के, किसी एनिमल के एल्केलाइन पीएच के कांटेक्ट में आता है, ध्यान से सुनना है, एल्केलाइन पीएच के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो वो एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस की गट सिस्टम में एल्केलाइन पीएच होता ही नहीं, गट सिस्टम होता ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। इसको किसी प्लांट के साथ अगर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, इस जीन को किसी प्लांट के साथ, क्राई प्रोटीन है तो भाई क्राई जीन्स भी होता है। तो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का अगर क्राई जीन्स किसी प्लांट के साथ, कौन से प्लांट के साथ, जनरली एक कॉटन प्लांट बनाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन के साथ अगर क्राई जीन्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, जैसे कॉटन नॉर्मली होता है, लेकिन अगर क्राई जीन का उसमें इनकॉर्पोरेशन कर दिया जाए तो उस कॉटन को ही बोलते हैं हम लोग बीटी कॉटन, ठीक है। तो बीटी कॉटन कब बोला जाएगा, जब बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का जीन
नॉर्मल कॉटन प्लांट के साथ क्या कर दिया जाए, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। अब वो नॉर्मल कॉटन प्लांट जो है बीटी कॉटन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नॉर्मल कॉटन जब बीटी कॉटन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो भी लगेगा क्राई प्रोटीन बनाने। अभी तो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया बना रहा था, लेकिन अब कॉटन प्लांट खुद बनाने लगेगा। अब कॉटन प्लांट में भी गट सिस्टम नहीं होता है, उसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, उसमें भी एल्कलाइन पीएच नहीं होता है, इसलिए कॉटन प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जैसे ही कॉटन प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट जो है कॉटन प्लांट के कॉटन बॉल को, लीफ को या स्टेम को खाते हैं, तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि खाने वाले इंसेक्ट जो है एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, जिसके पास खुद का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसके पास एक खुद का एल्कलाइन पीएच होता है, गट सिस्टम होता है, और वो क्राई प्रोटीन उसकी बॉडी में जाते ही एक्टिव हो जाएगा और उसका डिग्रेडेशन चालू कर देगा। तो ये आपको जानना है, ये आपको चैप्टर 12 में बताया जाएगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो लेक्चर में बता दिया, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन बाय द एसिडिक पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट। देखो मैंने अभी बोला ऊपर कि एल्कलाइन पीएच के कांटेक्ट में आता है तब जाकर के एक्टिव होता है। यहाँ पे एसिडिक पीएच दिया हुआ है, जो कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। यानी कि हमने ऊपर बताया था कि जब पहला स्टेटमेंट सही हो और दूसरा स्टेटमेंट सही हो तो ऑप्शन ए होता है, ठीक है। और जब पहला स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दूसरा हो तभी ऑप्शन ए होता है। जब दोनों स्टेटमेंट सही हो लेकिन रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो तो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन बी होता है। जब पहला स्टेटमेंट सही हो दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन सी होता है। जब दोनों स्टेटमेंट गलत होता है तो क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13 नंबर का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 14 पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 14 पे, लाइट इज एन इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, बिल्कुल सही है। लाइट इज नॉट पॉसिबल, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट लाइट, कह रहा है। यहाँ पे देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, लाइफ जो बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है। लाइट इज एन इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, ये भी जो है एबायोटिक फैक्टर है, ये सबको मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट क्यों एबायोटिक फैक्टर है इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लाइफ की बात कर दिया है, ठीक है। पढ़ने से स्टेटमेंट में मैंने क्या बोलता है, एक ट्रिक आपको दिया था कि जो लाइट है दोनों वर्ड जो है आना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत में ये वर्ड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत में जो वर्ड है वो लाइट नहीं दिया हुआ है, लाइफ दिया हुआ है। यानी कि ये लाइफ के एक्सप्लेनेशन की बात किया हुआ है। लाइफ के एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट्स यहाँ पे ये रीजन में दिया हुआ है, ये लाइफ के एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट दिया हुआ है, ना कि लाइट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट दोनों सही है, बट जो रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब क्या हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन जो है बी, रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें लाइफ की बात किया हुआ है, इसमें लाइट की बात किया हुआ है, यानी दोनों बात अपनी अपनी जगह पे सही है, बट दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, ठीक है। देखो ट्रिक तब काम करेगा जब दिया हुआ वर्ड शुरुआत में ही रीजन में आया हुआ हो। जैसे मैं कहूँ रमेश चोर है, रमेश का घर गोरखपुर में ही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रमेश चोर है, सुरेश रमेश का भाई नहीं है, ठीक है। तो सुरेश स्टेटमेंट, यहाँ दूसरे स्टेटमेंट में सुरेश की बात कर दिया, पहले स्टेटमेंट में किसकी बात किया था, रमेश की बात किया था। यानी कि जो जो टर्म आया हुआ है स्टेटमेंट में वो रीजन में तब आना चाहिए जब शुरुआती में हो, ठीक है। शुरुआत में ही आना चाहिए, तभी जाकर के रीजन जो है एक्सप्लेनेशन करेक्ट ए का हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने बोला कि एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट भी है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है कि ये पूरा आपको असर्शन रीजन से ही कोरिलेट करना था, ठीक है। हालांकि 15 में भी कुछ असर्शन रीजन्स अवेलेबल है, बट उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, ठीक। आपको असर्शन रीजन मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि आप असर्शन रीजन आपको समझ में आया तो आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या इसी वीडियो लेक्चर में कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और
अगर आपको थोड़ा सा और डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि सर और असर्शन रीजन क्वेश्चन आप लाइए, आपका मैं टेस्ट ले सकूं, तो निश्चित तौर पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से ही असर्शन रीजन चालू कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमको इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पूरा सॉल्व करना है ताकि आपका डाउट ये मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 14 ही अटेम्प्ट किया, जिसमें सब का सब जो है असर्शन रीजन टाइप ही था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 15 ऑनवर्ड क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।